Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawad. So friends, I welcome you all for the TY BSc in Organic Chemistry. Now we are in semester 6 and we have started the unit 4, that is some selected topics. So friends, in our last lecture we have also discussed about our overall syllabus, and then we have started with the very first topic of this particular unit, that is metallurgy. Okay, so we have seen that what is the definition of metallurgy. So metallurgy is nothing but the we can say the scientific and the technological process of isolation of metal from their ore. Okay, so this is very uh, interesting definition, that we all know that metals are required everywhere. It is very important part of our life, and therefore it is very necessary to extract the metals from soil in their pure form. Okay, so it is not always possible to get metal in very easy manner. So for that you have to extract, or you have to carry out significant steps or process, and this process should be scientific and technological. ये प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ से आपको मेटल इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली मिले. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज सर्टन प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी. तो हम लोगों ने देखा कि there are certain minerals which contain the ore. Okay, but the extraction of mineral is not economical, but the extraction of ore is economical, because the minerals from which metals can be economically and conveniently extracted are called as ore. Okay, तो जो सारी सॉइल है, अर्थ क्रस्ट है, उसे हम लोग मिनरल कहते हैं. लेकिन जहाँ पे हम लोगों को मेटल ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में और इकोनॉमिकली, मतलब cost of extraction is less and cost of profit, or we can say cost of metal is more, that is called as ore. ओके, ज्याला आपण मराठीत खाण असं म्हणतो. तर त्याच्यापासून आपल्याला जास्तीत जास्त अमाऊंटमध्ये मेटल मिळतं, अँड देअर फोर ओअर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, अँड फ्रॉम ओअर the process you apply, that is called as process of metallurgy. Okay, so it is very necessary to extract the ores, and you have to economically and conveniently extract your metals. Okay, so this is the significance of metallurgy. Okay, now we will also discuss what are the different types of metallurgy. ये भी हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था. तो हम लोगों को मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है, दे डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स. okay, so they depend upon various fundamental laws like thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, phase rule, electrochemistry, etc. तो depending upon the type of metal you want to extract and जो आपका ओर है ना, फिर उसके साथ साथ आपको कॉस्ट कितनी लगने वाली है, वेयर द एरिया इज़ लोकेटेड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लेबर इज़ रिक्वायर्ड, उस सारे के ऊपर क्या डिपेंड करता है, द चॉइस ऑफ metallurgical operations. Okay, so for different metal we use different processes. So the very first process, or we can say the metallurgical process by which metals are economically extracted, the first method is called as pyrometallurgy. Okay, तो ये जो pyrometallurgy है, that name itself suggests that there is heating of ore at very high temperature. तो ये जो temperature range है, it is from 373 Kelvin up to 3273 Kelvin. Okay, तो heavy metals like copper, ferrous, zinc, lead etc. are extracted using this method. तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यू हैव टू कैरी आउट 3 स्टेप्स. 3 अलग अलग स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन. ओके, तो कैल्सिनेशन इज हीटिंग द ओर मटेरियल टू इवापोरेट द वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. हम सबको पता है कि जैसे ही आप किसी चीज़ को हीट करने लगते हो, व्हेन द हीट इज सराउंडेड विद दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, पहले जो
वोलाटाइल मटेरियल होता है उसमें से वो सारा निकल जाता है। सबसे पहले तो वाटर वेपर निकल जाते हैं, पानी अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो निकल जाता है। सो सिमिलरली उसके बाद जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स है वो निकल जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ CO2 है, देन ऑल्सो वाटर, इस फॉर्म में निकल जाते हैं। देन द सेकंड स्टेप इज रोस्टिंग। सो रोस्टिंग में क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट द सल्फाइड ओर इनटू देयर ऑक्साइड्स। अगर आप सल्फाइड ओर यूज़ कर रहे हो, ओर मतलब क्या, मैंने अभी बताया कि ओर इज़ अ कंपाउंड ऑफ योर मेटल और यू कैन से कॉम्प्लेक्स ऑफ योर मेटल। तो मेटल अगर सल्फाइड के फॉर्म में है ना, इफ़ द मेटल्स आर कंबाइंड विथ सल्फर एंड दे आर फॉर्म सल्फाइड्स, तो ऐसे सल्फाइड ओवर्स आपको रोस्ट करने, एंड इन दैट केस द सल्फाइड ओवर्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स बाय द रिएक्शन ऑफ एयर और ऑक्सीजन। सो इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, देन द हीट फॉर द रोस्ट इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द रोस्टिंग रिएक्शन and therefore large amount of fuel is required to start this reaction. तो सल्फाइड ओवर कौन कौन से हो सकते हैं, अगर जिंक है तो जिंक सल्फाइड है ना, तो जिंक सल्फाइड व्हेन इट इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। ओके, तो इस तरह से रोस्टिंग में आपका जो मटेरियल है सल्फाइड मटेरियल, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। देन कम्स द थर्ड स्टेप। इन थर्ड स्टेप यू हैव टू कैरी आउट स्मेल्टिंग। ओके, और इस स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, अभी जो रोस्टिंग में आपको मेटल ऑक्साइड मिला था, वो मेटल ऑक्साइड इट इज़ रिड्यूस टू द ओरिजिनल मेटल। ओके, रिड्यूस करना है ना, तो मतलब मेटल ऑक्साइड जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स मेटल फॉर्म। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेस आर यूज हियर टू कैरी आउट दिस टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, और उसमें आपका जो मेटल ऑक्साइड है वो पर्टिकुलर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस वे फॉर हेवी मेटल पायरोमेटलर्जी इज कैरिड आउट। ओके, दूसरा जो प्रोसीजर है, दूसरा जो स्टेप है वो हो सकता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो जहाँ पे मेटलर्जी, जिस मेटल के लिए पायरोमेटलर्जी वर्कआउट नहीं करती, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज़ कर सकते हैं। So this process involve electrolysis of metal compound in their aqueous or anhydrous molten state. तो जैसे मटेरियल, जैसे कि मेटल विच कैनॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग पायरोमेटलर्जी, जैसे कि हम लोगों ने देखा वहाँ पे हेवी मेटल यूज़ होते, तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी यू हैव टू यूज़ एक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। तो ये मेटल हम लोगों को पहले एक्वियस फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में उनको पूरी तरह से मेल्ट कर लेना है, एंड देयर मोल्टन फॉर्म इज टेकन। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यू यूज़ इलेक्ट्रिकल करंट। तो सोडियम अगर हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओवर, मतलब इट इज़ इन अ कंपाउंड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है near about 1073 Kelvin, and therefore what you have to do, you have to melt this and then you have to apply the electric current. तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, then what will happen, when the current is passed through the molten mixture of sodium chloride and sometime calcium chloride, the sodium chloride ionizes, okay, into sodium and chloride ion. जैसे जैसे आप मेल्टेड सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड टेक प्लेस। ओके, सोडियम आयन जो पॉजिटिवली चार्ज है, दे माइग्रेट टूवर्ड कैथोड, क्योंकि कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है ना, तो सारे पॉजिटिव आयन जो सोडियम आयन है वो कैथोड के पास चले जाएंगे, while the chloride ions will travel or migrate toward anode. The molten sodium collect in the cathode component where it rises to the top and trapped off in a pipe. मतलब धीरे धीरे जैसे ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कैरी आउट करेंगे, वैसे वैसे आपको कैथोड पे पूरा सोडियम जो मोल्टन फॉर्म में वो मिलने लगेगा।
Okay, then chlorine is collected at the anode, and this type of reaction is called as electrolysis of the sodium chloride. So this way, for active metals you can use electrometallurgy. Okay, here the oxidation and reduction reaction take place. In spite of these two, you can also use hydrometallurgy. So in case of hydrometallurgy you have to use noble metal. अभी ये noble metal क्या है? जो metal कम reaction दिखाते हैं. In environment they show very less reaction with air, water. सो ऐसे कौन कौन से मेटल है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम. तो इसीलिए वो ज़्यादा किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, इसीलिए उसके हम लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, सो दैट वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो और सालों साल चलते रहे. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो वेरी कॉस्टली मेटल. So for hydrometallurgy you have to use two type of reaction, that is leaching and displacement reaction. Okay, so in case of leaching, what you have to do, noble metals like gold, silver and platinum हम लोगों को हाइड्रोमेटलर्जी यूज करना है. सो फॉर लीचिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर है ना, पहले जो मेटल का आप लोग ओर लाते हो अर्थ क्रस्ट से, उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है. ये जो सारी स्टेप्स है ये सारे स्टेप्स हम आगे देखने वाले, बट फॉर द टाइम बीइंग लीचिंग में क्या होता है वो देखेंगे. सो कॉन्सेंट्रेटेड जो ओर है विच इज लीच्ड विथ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ sodium cyanide. Okay, and then it is kept agitated with the current of air. Okay, so जो आपका गोल्ड है, अगर गोल्ड का लीचिंग कर रहे हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू गोल्ड साइनाइड. ओके, एंड देन ऑल अदर इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड. ओके, फिर एक बार आपको जो गोल्ड साइनाइड है वो मिल गया, देन यू हैव टू कैरी आउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इन केस ऑफ गोल्ड कॉम्प्लेक्स, अभी अभी हम लोगों ने गोल्ड का साइनाइड बनाया, इट इज ऑब्टेन एंड फिल्टर्ड एंड देन इट इज ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट. ओके, तो जिंक जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन गोल्ड, सो इट विल डिस्प्लेस द गोल्ड फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स. तो गोल्ड जो है वो निकल जाएगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, जिंक. ओके, सो जिंक का साइनाइड बन जाएगा एंड देन गोल्ड इज separated. So this way, using leaching and displacement reaction, you can separate gold from its ore. Okay, so hydrometallurgy is used for noble metals like silver, gold or platinum. Okay, तो ये हो गया टाइप ऑफ मेटलर्जी, कौन कौन से मेटलर्जिकल ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल सी द एक्चुअल स्टेप्स इन मेटलर्जी. सो व्हाट आर द जनरल स्टेप्स इन मेटलर्जी. एक मेटल का जो ओर है जो सॉइल में होता है, ओर क्या है, इट इज़ सॉइल ओनली, है ना, लेकिन ऐसी सॉइल जिसमें वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन में हम लोगों को मेटल मिलता है. हाँ? तो इस तरीके से वो जो सॉइल है, उस सॉइल से जो मेटल हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन इट्स 99.99% इन प्योर फॉर्म, ऐसी चीज़ में लाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे स्टेप्स कैरी आउट करने पड़ते हैं, है ना, एंड दे आर वेरी टीडियस, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो दे रिक्वायर वेरी हाई कॉस्ट. तो ये सारी चीज़ें जो हम मेटलर्जी में कैरी आउट करते हैं उसे कहते हैं जनरल स्टेप्स इन मेटलर्जी. बाय यूजिंग दिस स्टेप्स, ओर से मतलब सॉइल से हम लोग मेटल इन प्योर फॉर्म में ला सकते हैं. सो व्हाट आर दोज डिफरेंट स्टेप्स, है ना. तो सबसे पहले जो स्टेप्स करनी पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, है ना. सो दीज आर सर्टन कॉमन स्टेप्स बाय विच you can separate the ore and metal. ओके, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग जो ओर लेके आए, जो सॉइल लेके आए जिसमें ऑलरेडी मेटल है, लेकिन उसको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ कॉन्सेंट्रेशन. देन सेकंड स्टेप इज़ कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन में आपको उस कॉन्सेंट्रेट किए हुए ओर को हीट करना है. यू हैव टू हीट इट एट सर्टन टेम्परेचर. देन देर विल बी रोस्टिंग. थर्ड स्टेप इज़ रोस्टिंग, मतलब थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना है एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन और विद द सप्लाई ऑफ एयर. मतलब कैल्सिनेशन में सिर्फ हीट करना है, रोस्टिंग में यू हैव टू सप्लाई
oxygen or air. Then the fourth step comes, that is the reduction of metallic oxide to metal. ये जो फोर्थ स्टेप है उसमें रोस्टिंग के बाद एक्चुअली आपको ऑक्साइड मिलने वाला है, मेटल का ऑक्साइड, बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑक्साइड इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड. मतलब क्या है कि जब किसी चीज़ का एयर के साथ, मतलब स्पेशली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, देन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. तो एक बार रोस्टिंग हो गया तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा. अभी नेक्स्ट स्टेप ज़्यादा क्रूशियल है, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, है ना. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे. तो रिडक्शन क्या करेगा, ऑक्साइड को दूर करेगा और मेटल सेपरेट करेगा. सो इन दिस स्टेप, दिस फोर्थ स्टेप, वी गेट एक्चुअल फॉर्म ऑफ आवर मेटल. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिमेनिंग नाउ, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल. दैट इज द लास्ट स्टेप. रिफाइनिंग मतलब रिडक्शन के बाद हमें जो मेटल मिलता है that contains lot of impurities. Okay, so to remove those impurities and to get the metal in its purest form is called as refining of metal. तो ये जो 5 steps है, they are very very important in metallurgical process. Okay, तो ये तो सारे नाम हो गए. अभी हम लोग एक एक जो steps है वो डिटेल में देखेंगे. Okay, so very first step is called as कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले मेटलर्जी में हम लोगों को कौन सी स्टेप करनी है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ओके, सो व्हाट इज़ दैट, इट इज़ द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर. सबसे आसान काम है कि क्या करना है, आसान भाषा में, यू हैव टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल, दैट इज़ सैंड, क्ले, ग्लास पार्टिकल, जो भी इम्प्यूरिटी है, जो इजीली रिमूव होने वाली इम्प्यूरिटी है, उसे निकालना है. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, बिकॉज उसके ऊपर बाकी के सारे प्रोसेस डिपेंड करते हैं. सो इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ मेटलर्जी यूज, डिफरेंट मेटल्स आर कॉमनली दे हैव सेम प्रोसीजर फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए भी हम लोगों को बहुत सारे स्टेप्स कैरी आउट करने पड़ते हैं. कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं, सबसे पहले है माइनिंग. ओके, देन हैंड पिकिंग, देन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फिर उसके बाद ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड फाइनली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. तो ये सारे जो स्टेप्स है, 6 स्टेप्स, दे आर कैरिड आउट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो सॉइल लाए हैं अर्थ क्रस्ट से, उसका हम लोग माइनिंग करेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ माइनिंग, माइनिंग ऑफ ओर इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द ओर फ्रॉम द माइन्स. माइन्स तुम्हाला सगळ्यांना खूप चांगले माहिती आहे, बिकॉज यू ऑल नो द फिल्म KGF है ना, कोलार गोल्ड माइन्स. सो यू नो दॅट. सो माइन मतलब जिथे खाण आहे, खाणीमधून जिकडे आपण खनिज काढतो. खनिज म्हणजे काय, मिनरल्स, राईट. आणि जे ओर आहे त्याच्यामध्ये मात्र जास्त अमाऊंटमध्ये आपल्याला मेटल मिळतो. म्हणून खाणीतून मेटल काढण्यासाठी पहिले जे आपण सेपरेशन करतो ओअरचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज मायनिंग. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द ओअर फ्रॉम माइन. वेन ॲन ओअर ऑकर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इट कॅन बी डायरेक्टली डग आउट. म्हणजे जर ते जे ओअर मटेरियल आहे ते अर्थच्या सरफेसवर असेल, वरवरच्या पृष्ठभागावर असेल, तर तुम्हाला इझिली फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, खणायचं आहे आणि मग आपण त्याला सेपरेट करू शकतो. देन दिस टाईप ऑफ मायनिंग इज कॉल्ड ॲज ओपन पिट मायनिंग. म्हणजे एकदम सिंपल पद्धतीने फक्त माती खणायची आणि वरवरच्या सरफेसवरती जे ओअर आहे त्याला काढायचं. दॅट इज व्हेरी सिम्पल ओपन पिट मायनिंग प्रोसेस. बट वेन इट इज इन ग्रेटर डेप्थ, जेव्हा ते खोल असतं तेव्हा त्याला जरा जास्त प्रोसेस करून काढावं लागतं आणि त्याला म्हणायचं डीप मायनिंग. म्हणजे खोलवर असलेल्या जमिनीमधून ओअर सेपरेट करणे, त्याला म्हणायचं डीप मायनिंग. ओके, सो दिस वे इन मायनिंग प्रोसेस यू हॅव नाउ कलेक्टेड ऑल द ओअर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. Then the second step come in concentration of ore, that is called as hand picking. hand picking म्हणजे काय, हाताने वेचायचं. काय वेचायचं, इफ
the ore contain impurities which are quite distinct from the ore, and if it is also in large size, then hand picking is used. म्हणजे हाताने ज्या इम्प्युरिटी आपल्याला सेपरेट करता येतात त्या सेपरेट करायच्या. ओके, सो काही काचेचे तुकडे असतील किंवा क्ले असेल किंवा सँड माती असेल तर ती इझिली आपण सेपरेट करू शकतो यूजिंग हँड पिकिंग, कारण त्याची साईज पण मोठी असते. सो हँड पिकिंग इज ऑल्सो ॲप्लिकेबल टू द ओवर हॅविंग स्पेसिफिक कलर डिफरंट फ्रॉम द गॉंग मटेरियल. गॉंग म्हणजे काय, मॅट्रिक्स जे अनवॉन्टेड आहे ओवरपासून किंवा आपल्या मेटलपासून, त्याला सगळ्याला काय म्हणायचं, मॅट्रिक्स किंवा गॉंग. तर त्याचा कलर जर डिफरंट असेल तर ते सुद्धा आपण इझिली हँडपिक करू शकतो. म्हणजे आपल्या मेटलपेक्षा वेगळ्या कलरच्या, वेगळ्या साईजच्या आणि वेगळ्या प्रकारच्या वस्तू इझिली हाताने सेपरेट करणे, त्याला म्हणायचं हँड पिकिंग. Then the third step is also very important, that is crushing and grinding. The big lumps of the ore are crushed into smaller pieces with the help of jaw crusher, okay, or using hammer. म्हणजेच काय की मोठ्या मोठ्या सॉईलचे जे लम्प्स आहेत है ना, जमिनीतून तुम्ही काय आणले, ओवर म्हणजे काय, इट इज काइंड ऑफ सॉईल ओनली. तर ते सॉईल असंच्या असं त्यातून मेटल तर आपल्याला मिळणार नाही, आपल्याला माहिती आहे. तर त्याला आपल्याला बारीक करावं लागेल, ग्राइंड करावं लागेल है ना. सो टू कन्वर्ट द ओवर इंटू व्हेरी फाईन पावडर with the help of jaw crusher or hammering is called as crushing or grinding. So this way the crushed ore is then finally ground. एकदम बारीक त्याची पावडर बनवतात. The process of grinding the crushed ore into fine powder with the help of hammer mill is called as pulverization. तर जी प्रोसेस आहे ग्राइंडिंगची, आणि एकदा का तुम्ही हँड पिकिंग केलं, त्याच्यातल्या साध्या इम्प्युरिटी रिमूव्ह केल्या की मग आपल्याला ओवर एकदम फाईन पावडरमध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. तर ते जर स्टॅम्प मिलमध्ये कन्वर्ट करत असतील तर त्या प्रोसेसला काय म्हणतात, पल्वरायझेशन. ओके, सो धिस वे वी हॅव सीन 3 स्टेप्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओवर, दॅट इज मायनिंग, हँड पिकिंग अँड क्रशिंग. ओके, नंतरची जी स्टेप आहे ती काय आहे, ग्रॅव्हिटी सेपरेशन और हायड्रॉलिक वॉशिंग. ओके, म्हणजे ग्रॅव्हिटीच्या मदतीने आपल्याला जे जड मटेरियल आहे आपल्या मेटलपासून ते सेपरेट करायचं आहे. नंतर जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सेपरेशन आहे त्याच्यामध्ये ज्या गोष्टी मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होतात त्या आपण सेपरेट करू शकतो. अँड फायनली युजिंग फ्लोटेशन युजिंग द फोम, ओके, सोप वॉटर, दिस वे यू कॅन सेपरेट द रिमेनिंग मॅट्रिक्स ऑर इम्प्युरिटीज. तर त्या कशा कशा करतात ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. टिल दॅट यू टेक केअर अँड स्टे सेफ. थँक्यू.